Mr. Speaker, sir, my question is regarding 132 kV line from Khonsa to Longding and 33 by 11 kV line from Kanubari to Longding. Sir, as you know, the Longding district, not only Longding, Hill area, there is no hydro potential, and this TCL area is popularly known as the disturbed area. So you can imagine the disturbed area without light, without proper supply of light, without uninterrupted supply of power in the districts. The Longding is facing a lot of problems. Public are suffering. The hospitals, the police stations, the banks, the offices, the jail operating without stable electricity, and the educational institutions and the students, the businessmen, everybody is suffering without light. We just simply depend on a thermal power line which is 11 kV. Now the Arunachal is enjoying 132 kV line power supply in all districts. But Longding is with 11 kV. Very pathetic, unimaginable. So the department has answered here that the deadline of the completion will be by March 2026. This scheme has been pending since 7 to 8 years and yet to complete. The Longding is yet to get the light. We are in the Andhera Kaim Rahe as such. Very much in problem. We can imagine the civilized society without electricity. So I would like to get the assurance from the Honorable Minister Power as to when these promising schemes for supply of 132 kV line from Khonsa to Longding will be completed, and 133 by 11 kV from Kanubari to Longding. Honorable Speaker, sir, my question is relating to road from Bonia to Longding district headquarters via Kumau Circle headquarters under PM Divine scheme. Actually, this question was put to the PWD minister. This is put to PWD minister. ये जो रोड है सर, बहुत ही पुराना रोड है. Bonya to Longkhau 15 kilometer, Longkhau to Kumau 18 kilometer, then Kumau to Longding 25 kilometer, 60 kilometer around का road है. It is bordering to Nagaland, insurgency state Nagaland, बहुत disturbing state नागालैंड से बॉर्डर है. ये जो सर्कल 1983 में बनाया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन अभी तक वहां पे हमने अच्छा रास्ता नहीं दे सका. इनिशियली ये पीडब्ल्यूडी से बनाया था, लेकिन आरडब्ल्यूडी ने पीएमजीएसवाई कुछ स्कीम किया, लेकिन वो दैट वाज वेरी अनसक्सेसफुली मैंने एग्जीक्यूट किया है. काम इतना अच्छा नहीं हुआ. इसलिए ये जो प्रोमिसिंग इम्पोर्टेंट रोड है कनेक्टिंग पोंगचो सर्कल पोमाओ सर्कल विद द लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ में जो मिलिट्री मूवमेंट के लिए, पुलिस पर्सनल के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, एंड देन ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक के लिए, दिस रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोड. ये 60 किलोमीटर रोड है. लास्ट विजिट में सीएम साहब ने पब्लिक ने मेमोरेंडम दिया था, उसमें सीएम साहब ने भी कमिटमेंट दिया था कि इसको हम देखेंगे बोल के. नाउ
Through this question, I would like to know, I would like to get the assurance from the Honorable Chief Minister, who is also the Minister in charge of PWD, कि ये रास्ता को प्रोमिसिंग स्कीम जो पीएम डिवाइन में दे सकेगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, सबसे बैकवर्ड एरिया है एजुकेशनली और सोशली और इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड एरिया है और सेंसिटिव है, डिस्टर्ब एरिया है, इसलिए इसमें रास्ता देना बहुत जरूरी है। तो ये मैं फिर मिनिस्टर इंचार्ज वन हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनसे जानना चाहता हूँ। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो क्वेश्चन जो यहाँ में कंप्यूटर में तो शो कर रहा है ये स्टार्ट क्वेश्चन 24, मगर जो सर्कुलेट जो हुआ है इसमें स्टार्ट क्वेश्चन में इसको शो नहीं कर रहा है 24। अच्छा, शो कर रहा है, लेकिन इट हैज बीन मार्क टू द रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। एनीवे, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का जो आंसर है क्वेश्चन रूरल वर्क्स आरडब्ल्यूडी को दिया हुआ है, मगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी बोल के आ गया। तो आरडब्ल्यूडी का जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन में दिया हुआ है। The road passes through Pumao Circle and connect to district headquarter Longding. Yes, the road is important. And number 2 में है road was constructed under PMJSY 1. Yes, permanently road is under debilitated condition. तो इसको फिर सजेस्ट किया है कि चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड में लिया जाए। तो इनफैक्ट ये मेंबर श्री उन्होंने ठीक ही कहा, रिसेंटली मैं ओडिया फेस्टिवल में गया था वहाँ लोंगडिंग में, और वहाँ में भी इस रोड के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये काफ़ी लंबा एक स्ट्रेस एक रोड है, इसका डिटेल इनफैक्ट अभी मेरे पास अब हम लेके नहीं आया, मगर उसमें आरडब्ल्यूडी ने कितना स्ट्रेस किया हुआ है, और बीच में एक सेक्शंस भी है कि उसमें शायद रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो उसको भी लेके हमको फिर रिपेयर वगैरह करना होगा। सो एनीवे, ऑनरेबल स्पीकर साहब, अभी उतना क्लियरिटी के साथ में हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो जवाब आना था वो मेरा अभी फोल्डर में यहाँ आया नहीं है। तो गवर्नर्स मोशन ऑफ थैंक्स डिस्कशन में हम इसका डिटेल में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक यू सर। इसमें क्लियरली लिखा हुआ विल द मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी बी प्लीज टू स्टेट, फिर नीचे में अंडर द सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन किसी और को आंसर किसी और से आ रहा है। सर, ये रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पूरा डिलापिडेटेड कंडीशन में है। लास्ट मानसून में इसको पूरा खराब कर दिया, गाड़ी नहीं जा सकता है, पब्लिक भी पैदल ही जा रहा है अभी। अब बीमारी के लिए चावल ये सब लोग को तकलीफ हो रहा है, और मिलिट्री मैंने अपना ड्यूटी नहीं कर सक रहा है इसमें, तो इसलिए मैंने इसका मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा मांगा था। एटलीस्ट मेंटेनेंस भी थोड़ा कर देने से ठीक ठाक भी थोड़ा सा हमको जवाब। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे मैंने कहा कि गवर्नर्स मोशन ऑफ थैंक्स डिस्कशन में इसका हम डिटेल आंसर दे देंगे। थोड़ा स्टडी कर लेगा और उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। नाउ My deep concern for the people of Tawang and other border areas people whose land have been occupied by the Indian Army without proper legal process. These issues has gone unchecked for too long. Similar is the case in Longding district also. We have army settlement in Kanubari, Namdang. We have army settlement in Panchau, Wakka, Konsa, Nyausa, and in Tirap district also we have army settlement in 2 places. They have been settling there, staying there for last many years. The peoples are not allowed for cultivation. They are not allowed for livelihood. Farmers, the graziers and the local business are not allowed in their own land, pushing them to an economic hardship. And there is no legal clarity whether this land belongs to the army or to the public.
Land has been taken without proper documentation, leaving the villagers into a legal limbo with no ownership rights. बहुत सालों से 30-40 साल से आर्मी रहा है उस जगह में, गांव वाले को खेती करने के भी नहीं देता है, अपना जमीन में कोई हक नहीं है और उनको कंपेंसेशन भी नहीं दिया गया है। तो ये जो द राइट टू फेयर कंपेंसेशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 का मीनिंग क्या हो सकता है? तो अगर हमारा पब्लिक को अगर राइट नहीं मिलेगा तो इस कानून बनने का क्या मीनिंग है? तो इसलिए माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू दिस अगस्त हाउस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लीड लेकर के ये सॉल्यूशन में लाना चाहिए, पब्लिक को अपना हक देना चाहिए और तवांग में जो द रिलीजियस प्लेस है उसको डीनोटिफाई करना चाहिए, पब्लिक को एक्सेस देना चाहिए वहां पे और जमीन का मालिक को अपना उसका कीमत मिलना चाहिए। नॉट ओनली जमीन का मालिक, अभी अरुणाचल में इतना सालों से BSNL है, इतना सालों से प्राइवेट कंपनीज है, व्हाई नॉट दे आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? रिट्रोस्पेक्टिव देना चाहिए, जब से था तब से इनको अरुणाचल को गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। नोबडी इज पेइंग टैक्स, अरुणाचल लैंड ऑफ खुशी खुशी जैसा हो रहा है। इस सब पब्लिक के इंटरेस्ट में भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वी नो ओनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 उसके बारे में हम बोलते जा रहा है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 के बारे में किसी को मालूम नहीं, किसी को बोलना नहीं चाहता है। कंजर्वेशन एक्ट जो 2080 वो तो ट्राइबल का दुश्मन है, उसको कंट्रडिक्ट करने के लिए 2006 में जो कानून बनाया है उसका फायदा उठाना चाहिए, वो फायदा उठाना चाहिए। ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक को अवेयरनेस लाना चाहिए, पब्लिक को अवेयरनेस ला करके उसका फायदा होना चाहिए। 2080 से प्रायर टू 2080 अगर कोई सेटल हुआ है इवन रिजर्व फॉरेस्ट में, इवन वाइल्ड लाइफ में होने से भी उसको जमीन हकदार बनता है। 4 हेक्टेयर तक उसको जमीन अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसे प्रोविजन है 2006 का जो फॉरेस्ट ड्यूल एक्ट, ट्राइबल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूल एक्ट 2006 में। ये सबको जो पब्लिक का जहां इंटरेस्ट है वो सबको हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए। अभी ये कंपेंसेशन है, आर्मी कितना साल से है, कॉमन पब्लिक है, गांव आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कंपेंसेशन मांग नहीं सकता है, आर्मी वालों से बात भी नहीं कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो इनको कंपेंसेशन कहां मिलेगा, कब मिलेगा? कितना सालों से उनका जमीन ऑक्युपाई करके रखा है, उनका लाइवलीहुड को कोलैप्स करके रखा है, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद करके रखा है। तो इसलिए उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, दे विल ऑल्सो इनहेरिट द डिस्प्यूटेड लैंड। अभी उनका नेक्स्ट जनरेशन वो भी डिस्प्यूट लैंड को इनहेरिट, इसलिए इसको क्लियरिटी लाना चाहिए। मेरा गांव में 1971 से आर्मी बैठा है, अभी तक वो जमीन आर्मी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं ऐसे। और ये कौनसा में है, पंचाऊ में है, वक्का में है, पब्लिक को तो मालूम नहीं है ये कैसे। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कंपेंसेशन सेटलमेंट करके देना चाहिए। तो सिमिलरली तावंग का भी यही केस होगा। तावंग का जमीन में आर्मी बैठा है, उनको मालिक को कोई हक नहीं दे रहा है, वहां घुसने नहीं दे रहा है, उनका रिलीजियस प्लेस में भी जाने नहीं दे रहा है और उनको कीमत भी नहीं मिला है, क्लियर भी नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन में है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की प्रॉपर लीगल वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड ऑक्युपाइड लैंड मस्ट बी डन
and a fair compensation and reallocation of the affected families must be done, and a denotification of the religious and the cultural site be done, and then a transparent land policy to prevent future unauthorized occupation और बनाना चाहिए हम लोग, और गवर्नमेंट, आर्मी एंड लोकल अथॉरिटीज का बीच में एक एमिकेबली एक डायलॉग करके ये सॉल्यूशन लाने से अच्छा होगा. दिस इज नॉट अबाउट चैलेंजिंग द नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनको दे आर वेरी मच नेसेसरी, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल किसी का राइट भी होता है, ओनरशिप राइट भी होता है, तो भी हम डिप्राइव नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई वी मस्ट एंश्योर दैट आवर पीपल आर नॉट सैक्रिफाइस्ड इन द प्रोसेस. So with this, I would like to stop here. Thank you. Member who wants to speak on the report may please speak. Thangma Manghan ji. Mr. Speaker, sir, I rise here to participate on discussion on the roadmap of education scenario of the state of Arunachal Pradesh, led by Honorable Minister Education Shri P.D. Sonaji in the Sagas House. I appreciate him. There has been many education minister, but nobody attempted such a novel, very nice initiative. The height of the man is measured by the height of his knowledge, his thoughts. इंसान को उनका भावनाओं से, उनका विजडम से पहचाना जाता है. सोना साहब, आपका जो थॉट्स है, आपका जो इनिशिएटिव है, इट इज हाईली अप्रिशिएबल. आपने चिंतन शिविर के नाम पे ऑल अरुणाचल में टूर किया. दिस इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल. आई कांग्रेचुलेट यू. 28 डिस्ट्रिक्ट को आप टूरिंग किया, विजिट किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, डीडीएससी एंड स्टाफ से बात किया, पब्लिक से बात किया, पंचायत से बात किया, स्टूडेंट से मिला आप, और वहां का एवरी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक का क्या फीलिंग है, स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम्स है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम्स है, सिस्टम में क्या लूपहोल है, आपने पूरा स्टडी किया. ये जो विचार, ये थॉट जो आपका अंदर में आया, ये दिस इज कॉल्ड विजडम. विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड. विजडम बाजार में नहीं मिलता है, ये आपको मिला है. आई कांग्रेचुलेट यू. आपसे आगे भी बहुत एजुकेशन मिनिस्टर था, लेकिन किसी ने ऐसे कुछ अटेम्प्ट किया नहीं. तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टच ले रहा आपने. ये जो टच है, आपने जो मिशन मोड में ले रहा है, मिशन शिक्षित अरुणाचल, 3 साल 3 इयर्स का जो मिशन शिक्षित को आपने कंसेप्ट ले रहा है, इट इज अ चैलेंजिंग एंड प्रॉमिसिंग जॉब. इसको सक्सेस होना पड़ेगा. सक्सेस नहीं होने से कोई फायदा नहीं होता. साइंटिस्ट का 2 नाम होता है, एक है साइंटिस्ट, एक है पागल. 10 मिनट में जब वो मैंने स्टडी करते रहेगा, उस समय में उसका ये तो पागल हो गया, ये तो पागला हो गया. तो जब सक्सेस होता है उसको साइंटिस्ट बोलता है. तो शुरू में आपको कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना है. आप विद फुल ऑफ डेडिकेशन ई मिशन को कंप्लीट करने के लिए लग जाना चाहिए. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में वी ऑल हैव टू थिंक वेरी डीपली. एजुकेशन फॉर मेंटल माइंड के लिए, हेल्थ शरीर के लिए. माइंड अगर ठीक नहीं है,
शरीर भी ठीक नहीं है तो स्टेट कैसे चलेगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपने ले रखा है, एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एंड दिस इज अ रिमार्केबल बिगिनिंग फ्रॉम माय साइड। तो पूरा 100% कॉर्पोरेशन मिलेगा एंड आई होप ऑल अदर representative from respective constituency will also extend their fullest cooperation to your mission. यहाँ पे सर प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स। टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। से कोई डिस्ट्रिक्ट में अभी 1000, कोई बोल रहा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1000 टीचर मैंने एक्स्ट्रा है बोल रहा था। 1000 टीचर एक्स्ट्रा है। हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ओनली 200 ही टीचर एग्जाम्पल। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, सबको नौकरी दे दिया, अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना नियर एंड डियर जितना क्लोज रिलेटिव को, डिस्टेंस रिलेटिव को, सबको, मामा चाचा नाना सबको, तब तो होगा ही ये। तो कोई डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो गया टीचर, कोई डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं है। और आजकल का टीचर अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना नहीं चाहते कोई भी कहीं भी। तो सिचुएशन यहां पे खराब हो रहा है, सिचुएशन यहां से गड़बड़ हो रहा है। तो टीचर का जो इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से, एंड देन टीचर का जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी नहीं बनाया आज तक, और बनाता है होने से भी उसको नहीं चला रहा है, आज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। नाहरलगुन में पप्पू नाला में जहां मेरा छोटा सा लैंड अलॉटमेंट था, वहां में 7 टीचर है। 7 टीचर कभी आता भी नहीं, लेकिन वहां में ओनली 1 स्टूडेंट था। वो भी मेरा लॉन्गडिंग का लड़का था, वो भी चला गया। अभी तो वहां 0 स्टूडेंट है लेकिन 7 टीचर है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो ऐसे सब सीरियसली लेना चाहिए। और चीज को सीरियसली नहीं लेगा तो आपका पास जितना कुछ होने से भी कोई फायदा नहीं है, जितना रिसोर्स होने से भी कोई फायदा नहीं है अगर उसको अच्छा से मैनेज नहीं करने से। तो इसलिए ये जो शिक्षित अरुणाचल मिशन जो है, ये सबको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्शन में लाने के लिए, मॉडिफिकेशन में लाने के लिए ये मिशन बनाया होगा। और फॉर साइंस एंड मैथ्स में व्हाट आई थिंक इज साइंस एंड मैथ्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी देना चाहिए, एटलीस्ट 4-5 साल के लिए। उसमें 50-50 कोटा कर दीजिए। हमारा ट्राइबल लड़का लोग होना चाहिए, तो साइंस एंड मैथ्स में कोई है ही नहीं है, तो उसको 50-50 करने से भी ठीक है। बाहर से अच्छा टीचर, साइंस टीचर आना चाहिए और मैथ्स टीचर आना चाहिए, उसको ये एक रास्ता हम बना सकते हैं। और स्कूल में कंपल्सरी हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी बोलना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश बोलना चाहिए। माने अब सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज बोलने के लिए कंपल्सरी करना चाहिए। अरे इंग्लिश सब्जेक्ट तो अपना लोकल भाषा में पढ़ा रहा है, हिंदी सब्जेक्ट अपना लोकल भाषा में पढ़ा रहा है। ऐसे करने से कैसे एजुकेशन चलेगा? तो इसको थोड़ा देखिए। टीचर एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश क्लास में इंग्लिश ही बोलने से ठीक है, हिंदी क्लास में हिंदी ही बोलने से ठीक है। वो कंपल्सरी उसको एनवायरनमेंट लाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए। और टीचर का भी साल में एक बार एग्जाम होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए उनका। वो कभी क्लास में आता ही नहीं है, स्टूडेंट अटेंडेंस होता है, फुल अटेंडेंस है, लेकिन टीचर एब्सेंट है। स्टूडेंट तो पूरा फुल अटेंडेंस है, लेकिन टीचर एब्सेंट है।
तो वो कहाँ सीखेगा? लर्निंग बाय टीचिंग होना चाहिए। वो तो टीचिंग करता नहीं तो कहाँ लर्न करेगा? इसीलिए उनको भी एक एग्जाम देना चाहिए एवरी ईयर, वो उस टेस्ट पास करना चाहिए। देन ओनली ही शुड बी एंटरटेन्ड फॉर इंक्रीमेंट। अच्छा इंक्रीमेंट दीजिए ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर, टीचर को अच्छा इंक्रीमेंट दीजिए, लेकिन उसको एग्जाम पास करना है। ये भी एक रूल्स बनाने से ठीक है। अगर आप मिशन ही चलाना है तो, शिक्षित अरुणाचल का अगर मिशन चलाना है तो ऐसा एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट एक रूल्स भी बनाना चाहिए। आउट ऑफ जो सर्विस रूल हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा उसको इंक्रीमेंट देना चाहिए टीचर को। और स्कूल में लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल में एंड हाई सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। और लाइब्रेरी किताब अगर मैंडेटरी अगर इशू करेगा बच्चा लोग को, स्टूडेंट पढ़ने देगा, किताब को ले जाएगा फिर वापस करेगा, कितना अच्छा लगता है ना उसमें, और एंजॉय करता है किताब को पढ़ने में। रीडिंग हैबिट बनाना चाहिए बच्चा लोग को, जोर जोर से पढ़ने का हैबिट बनाना चाहिए। क्लासरूम में तो कोई पढ़ता है नहीं, खड़ा होकर जोर जोर से लाउड मैंने रीडिंग अलाउ करना चाहिए, वो करता ही नहीं है। तो लाइब्रेरी होना चाहिए और डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, हॉल लाइब्रेरी भी होना चाहिए। और स्टूडेंट जो है वो टोटली कंपटीशन होना चाहिए, लाइक योर एक्सटेम्पोरल स्पीच होना चाहिए, लाइक योर डिबेट होना चाहिए, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए, पोएट्री पोएम रिसाइटेशन होना चाहिए। ये एवरी वीक स्कूल में ये एटमॉस्फेयर लाना चाहिए, तब लर्निंग एटमॉस्फेयर आएगा, तब हमारा बच्चा लोग आगे बढ़ सकता है। लास्ट 5 साल पहले तो एग्जाम नहीं देने से होगा, सबको पास कराओ बोल के भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कान। दिस इज नॉट गुड। इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम को। और लोकल लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के लिए लोकल लैंग्वेज 2 होने से अच्छा है। अपना लोकल लैंग्वेज होने से इजीली हम सब्जेक्ट को समझ सकता है, इसलिए लोकल लैंग्वेज को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। और आउट ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि जितना भी अरुणाचल में स्कूल है सबका एलपीसी लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट करा लेना चाहिए। लैंड एनक्रोचमेंट बहुत हो रहा है, मेरा ही अपना गांव में लैंड एनक्रोचमेंट हो, कोई प्राइवेट पार्टी ने एलपीसी बना के मिला है चुपचाप से, अभी तो सरेंडर हो गया। ऐसे होता है, इसलिए एजुकेशन सेक्रेटरी और कमिश्नर आपने रेस्पेक्टिव डीसी को, डिस्ट्रिक्ट के डीसी को बोल के एलपीसी करा लेना चाहिए। एंड टीचर का जो पेमेंट है और स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड है उसको, एंड जो क्या एसएनपी आइटम जो होता है स्कूल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पीएम पोर्शन जिसको कहता है, वो टाइमली डिलीवर होना चाहिए। टीचर का पेमेंट टाइमली नहीं मिलेगा तो क्या मूड में पड़ेगा वो। और स्टूडेंट का स्टाइपेंड अगर टाइमली नहीं मिलेगा तो हम लोग हॉस्टल बनाना चाहता है, हॉस्टल बना के अगर स्टूडेंट को स्टाइपेंड नहीं देगा तो वो खाना कहां से होगा। लोन में, मार्केट से लोन में लेगा, खाना खाएगा क्या? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट का स्टाइपेंड भी बढ़ा देना चाहिए, एटलीस्ट 2 मील दिन में 2 बार खाने के लिए। 1000 से वो जो अभी हो रहा है 1000 1200 1500 से नहीं होगा, स्टाइपेंड भी बढ़ा देना चाहिए, उसको भी एनहेंस कराना है।
और टीचर का पेमेंट भी टाइमली मिलना चाहिए, स्टूडेंट का स्टाइपेंड भी टाइमली मिलना चाहिए, तभी जो प्रपोज जो हॉस्टल जो चलाने के लिए इंटर विलेज जो स्कूल्स एंड हॉस्टल चलाने का जो प्रपोजल है, तब भी वो सक्सेस होगा। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मनी इज द मॉडर्न मील फॉर ऑल एक्टिविटीज। पैसा के बिना कुछ नहीं होगा। स्टाइपेंड अगर टाइमली नहीं देगा, टीचर पेमेंट टाइमली नहीं देगा, ये मिशन सक्सेस नहीं होगा। तो ये मेरा स्मॉल एडवाइस है। एडिक्यूट जो मंथली सैलरी होना चाहिए हॉस्टलर्स जो हॉस्टल में रहेगा वो लोग को, एंड डीडीएससी एंड डीपीसी ने स्कूल इंस्पेक्ट करने चाहिए एवरी वीक स्कूल इंस्पेक्ट करना देना चाहिए। ये ऑफिस में बैठते रहता है और बिल्डिंग सिलिंग का क्लासरूम का बिल बनाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बिल। कुछ भी काम नहीं करता है, लोग बिल बनाते रहो, कॉन्टेक्ट करते रहो, खुद कॉन्ट्रेक्टर बनता है ये डीजी ऑफिस का स्टाफ। लॉन्गडिंग का जो लॉन्गडिंग मेरा लॉन्गडिंग का जितना स्टाफ है सब कॉन्ट्रेक्टर है। माय गॉड, 6 मंजिल बना चुका है घर भी। बानू मारी बोली कुछ काम नहीं करता। इनको स्कूल में भेजना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। एवरी वीक ये लोग स्कूल विजिट करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए। और डीसी एवरी मंथ स्कूल विजिट करना चाहिए। डीसी कभी विजिट करता है नहीं। डीसी क्या करता है पता नहीं। डीसी मस्ट विजिट द स्कूल, हॉस्पिटल और स्कूल में नहीं जाना है तो डीसी कहां जाएगा? क्या काम है डीसी का? उसको रोड बनाना भी नहीं है, बिल्डिंग बनाना भी नहीं है, ब्रिज बनाना भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है उसका। ही मस्ट विजिट, ये मैंडेटरी बनाइए। देन आपका जो रिव्यू मीटिंग लेते रहेगा स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल, वो रिव्यू मीटिंग से ज्यादा विजिट इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माना दिस इज माय, मेरा ये है ओपिनियन है। एंड कॉमन एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन लगाना चाहिए कि गांव का एक स्कूल को एडॉप्ट करना चाहिए एचओडी ने। एवरी एचओडी शुड एडॉप्ट one स्कूल्स इन अपना डिस्ट्रिक्ट में। कुछ भी प्रॉब्लम होने से, कुछ नेसेसरी होने से, स्मॉल रिपेयर मेंटेनेंस ये सब भी वो लोग कर देगा, हेल्प भी कर देगा। और कभी कभार वो इंजीनियर बैकग्राउंड से है, डॉक्टर बैकग्राउंड से है, ऑफिसर बैकग्राउंड से है, वो स्कूल में जाके महीना में एक बार भी कम से कम क्लास दे सकता है, लेक्चर दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है। तो जो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एक स्कूल को एडॉप्ट करने के लिए रूल्स बनाइए, तब हमारा जो मिशन, ये जो मिशन शिक्षित अरुणाचल, ये तब सक्सेस होगा। इतना ज्ञानी इंटेलिजेंट ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ब्यूरोक्रेट है, ये लोग जो है वो एक स्कूल को एडॉप्ट करने के लिए इनको मौका देना चाहिए। और ये लोग स्कूल में लेक्चर करना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चा लोग को, स्टूडेंट को। तो सब कलेक्टिव इफोर्ट होने से ही ये मिशन सक्सेस होगा। ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये नहीं देना चाहिए। ये सब मतलब कलेक्टिवली विद सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ ऑनरशिप के साथ, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, ये सोच के दैट सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ सब कलेक्टिवली अगर काम करेगा तब ये मिशन सक्सेस हो सकता है। इसीलिए एचओडी को स्कूल एडॉप्ट करने के लिए तो देना अच्छा है। एंड कभी कभी सुनने को मिलता है कि कोई टीचर 2 जगह से तनख्वाह लेता है। कोई तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो गया, उसका तनख्वाह ले रहा है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी तो चल रहा है उसका, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आता है क्या पैसा। और फिर वो रेगुलर भी हो गया, अलग जगह में ट्रांसफर भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया, और रेगुलर का भी तनख्वाह खा रहा है, वो ले रहा है, और कॉन्ट्रेक्चुअल को भी ले रहा है।
तो ये सब भी देखना चाहिए। अगर ऐसे गद्दारी करेगा देश के साथ तो देश कैसे चलेगा? हम क्यों आया है, कहां से आया है और कहां जाने वाला है, समझना चाहिए। इस संसार को सुंदर कराने के लिए आया है, प्यार बढ़ाने के लिए आया है, रिनोवेट टू री इन्वेंट हम लोग आया है। यहां से लेने के लिए नहीं, यहां देने के लिए आना चाहिए। वी मस्ट कम टू गिव। दो जगह से तनख्वाह लेगा, ये एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो बाकी तो आप मेंबर लोग भी बोलेगा इसमें। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा ही रिपोर्ट है। हम बहुत खुशी लगा कल इसको थोड़ा पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। मेरा साइड से जो फुल कोऑपरेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।